لاہور میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے دربار بی بی پاک دامن پر حاضری دی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ملک میں امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ گورنر پنجاب نے سیکورٹی انتظامات کا معائنہ کیا اور محرم الحرام کے موقع پر شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خصوصی احکامات بھی جاری کیے۔ اسلام آباد میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس سینیٹر فیصل سلیم رحمان کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزیر، سیکریٹری داخلہ سمیت دیگر اہم حکام نے شرکت کی۔ کمیٹی نے دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہونے والے سینیٹر ہدایت اللہ کے احصال ثواب کے لیے فاتح بھی پڑھی۔ سیکریٹری داخلہ نے چائنیز کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ دیامیر بھاشا اور مومن ڈیم کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سرویلنس کی جاتی ہے۔ چینی باشندوں کی نقل و حرکت کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صوبوں کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سینیٹر عمر فاروق کا کہنا تھا کہ عام شہری کی زندگی کے تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ غیر ملکی شہریوں کی۔ بلوچستان میں ہزاروں افراد روز قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا۔ چیئرمین نے تورخم بارڈر پر انسداد اسمگلنگ اداروں کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے حالیہ کارروائیوں کی تعریف کی اور اس نازک معاملے پر ایف بی آر کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ شہادت حضرت شہزادہ علی اصغر کے سلسلہ میں امام بارگاہ کاشانہ پنجتن پارک ڈیفنس مین بولیوارڈ روڈ لاہور میں مجلس عزا منعقد کی گئی۔ بانی مجلس سید سجاد حسن بخاری تھے۔ علامہ حسین عابد نعیمی نے اہل بیت کی شان بیان کی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عاصم بدر اپنی اس رپورٹ میں۔ 4 محرم الحرام بسلسلہ شہادت حضرت شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے سلسلے میں امام بارگاہ کاشانہ پنجتن پارک ڈیفنس روڈ لاہور میں مجلس عزا منعقد کی گئی۔ بانی مجلس سید سجاد حسین بخاری، سید غلام عباس بخاری، سید زامن علی بخاری۔ مجلس کے آغاز میں سید عاطف زیدی نے سوز و سلام پڑھ کر حاضرین محفل سے خوب داد سمیٹی۔ مجلس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ حسین عابد نعیمی نے اہل بیت کی شان بیان کی۔ علامہ صاحب کا کہنا تھا، شہزادہ علی اصغر کربلا کے واحد جنگجو تھے جنہوں نے ظالموں کو اپنی پیاس سے شکست دی اور نانا کا دین بچانے کے لیے اس تیر سے شہید ہوئے جو تیر گوروں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس تیر کے 3 منہ تھے، ایک منہ شہزادہ علی کے کان میں لگا اور دوسرا شہزادہ علی اصغر کے گلے میں اور تیسرا شہزادے کے سینے میں لگا۔ اس طرح شہزادہ علی اصغر کی اللہ کی بارگاہ میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے علامہ صاحب نے حاضرین محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں، پنجتن کا گھرانہ ہی واحد گھرانہ ہے جو دنیا میں افضل ترین گھرانہ ہے۔ نہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ ہی رہتی دنیا تک کوئی آئے گا۔ اختتامی مجلس پر شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے سلسلے میں زیارت برآمد ہوئی جو اپنے مقررہ راستوں سے ہو کر واپس امام بارگاہ کاشانہ پنجتن پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ جلوس کے راستوں میں آنے والی تمام گلیوں کو خاردار تارے لگا کر بند کیا گیا۔ کیمرہ مین چاند کے ہمراہ عاصم بدر، کوہ نور نیوز، لاہور۔ لاہور شہر میں متعدد چاہراہوں پر بارشی پانی کھڑا ہے۔ وارڈنز ٹریفک کی روانی میں مصروف عمل ہیں۔ سی ٹی او لاہور کے حکم پر انڈر پاسز، نشیبی چوکوں پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ سرکل افسران نکاسی آب کے لیے واسع انتظامیہ سے رابطہ میں رہیں۔ بارش میں بھی وارڈنز میں بہترین ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ بارش کے باوجود کہیں ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہونے دی جا رہی۔ تمام سرکل افسران واسع انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ سی ٹی او لاہور نے شہریوں خصوصاً وارڈنز کو الیکٹرک تنصیبات سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ سی ٹی او لاہور امارا اطہر نے مزنگ، چبرجی، لوئر مال سمیت دیگر نشیبی علاقوں کا وزٹ کیا اور مانسون کے دوران ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس پی سٹی منیر ہاشمی نے مغل پورہ، جی ٹی روڈ، لوئر مال، لٹن روڈ کا وزٹ کیا۔ ایس پی صدر شہزاد خان کا ٹھوکر نیاز بیگ، کینال روڈ، رائیون کا وزٹ۔ ایس پی کینٹ سہیل فاضل کا مال روڈ، جیل روڈ، گلبرگ، ایم ایم عالم روڈ کا وزٹ۔ لاہور شہر میں مختلف مقامات پر موسلادھار بارش کا سلسلہ بردستور جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر واسا لاہور متحرک ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد بارش کے ساتھ ہی فیلڈ میں متحرک ہو گئے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا مبین شہید انڈر پاس اور قلمہ چوک انڈر پاس، لبرٹی چوک مانسون ایمرجنسی کیمپس کا بھی دورہ اور شہر میں جاری نکاسی آب آپریشن کا معائنہ کیا۔ غفران احمد نے عثمان بلاک ڈسپوزل اسٹیشن کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام مانسون ایمرجنسی کیمپس پر سٹاف اور مشنری مکمل الرٹ رہے۔ انہوں نے تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کو مکمل استعداد پر چلانے، تمام مرکزی شاہراہوں انڈر پاسز کو کلیئر رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی۔
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की बैरिस्टर मियां आमिर हसन की रिहाइश का आमद मजलिस तदब्बुर और तफक्कुर मारफत रहमतुल्लिल आलमीन और कुरान में शिरकत की। इस मौके पर मजलिस में मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया गया और फलसफा शहादत पर गुफ्तगू करते हुए शहदाए करबला को नजरान अकीदत पेश किया गया। मजलिस में बैरिस्टर आमिर हसन, मियां तारिक सज्जाद, डॉक्टर मजहर इकबाल, इंजीनियर मंसूर हुसैन, पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इतलात शहजाद सईद चीमा, सरदार अली और दीगर शरीक हुए। सवाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 38वां सिंडिकेट इजलास तमाम फैसलों की तौसीक कर दी गई। इस मौके पर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नदीम ने एजेंडे के मंदरजात पेश किए। इजलास के दौरान प्रोफेसर शबनम को डीजी पंजाब थैलेसीमिया एंड जेनेटिक डिजीजेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट का इजाफी चार्ज देने की मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी को असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल एजुकेशन और डेप्यूटी डायरेक्टर QEC के अपॉइंटमेंट की इजाजत दी गई। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की एक्सटेंशन की मंजूरी भी दी गई। वहीं इजलास के दौरान मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की CSSD और लाउंड्री को ऑपरेशनलाइज करने के लिए आउटसोर्सिंग की इजाजत दी गई। इजलास के दौरान अद्वियात की खरीदारी के लिए तीसरी रिटेंडर की फ्रेमवर्क की इजाजत भी दे दी गई। पाकिस्तान रेलवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से 22 ट्रेनों की निजकारी की जा रही है। इसमें वो ट्रेनें भी शामिल हैं जो मुनाफा में जा रही हैं। मुसाफिर ट्रेनें जिनकी निजकारी की जा रही है उनमें कुराक्रम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, हजारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, बोलान मेल भी शामिल हैं। प्रेम यूनियन पाकिस्तान ने रेलवे के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और यौम आशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक रेलवे हेडक्वार्टर्स में प्राइम यूनियन के मरकजी सदर शेख मोहम्मद अनवर के हमरा मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। रेलवे हेडक्वार्टर में जहां पर पता लगा है कि जी 22 ट्रेनें रेलवे आउटसोर्स करने जा रही है, जिसमें इन ट्रेनों में कराकोरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस वगैरह शामिल हैं, बुलान एक्सप्रेस भी शामिल हैं। बाकी इसके अलावा बाकी ट्रेनें भी इसमें शामिल हैं, आउटसोर्स करने जा रहे हैं। ये फैसला कैसा है और इससे क्या रेलवे का सफ़र मज़ीद महंगा होगा? हमारे साथ प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर शेख मोहम्मद अनवर मौजूद हैं और वो मुहर्रम के बाद इसके कौन सी एहतजाजी तहरीक शुरू करने लगे हैं, इस वाले से बात है। जी शुक्रिया जी। ऐसा है जी कि ख़बर अखबार में पड़ी है, इंतहाई दुख वाली ख़बर है कि वो रेलवे जो कि डीरेल हो चुकी थी और रेलवे के मज़दूरों ने मेहनत करके शब रोज़ और रेलवे की आमदन जो कभी भी 54 अरब से ज़्यादा नहीं थी, हिस्ट्री में पहली दफ़ा 87-88 अरब तक पहुँची है। तो उसके नतीजे में ये कह दिया गया कि जनाब अब ट्रेनें हम प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। अगर ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर में देना है तो फिर आपने क्या करना है रेलवे में, फिर आपकी क्या जस्टिफिकेशन है? हम इस फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं और अब ज़ाहिर है शूरा है कि दिन है, मुहर्रम उल हराम का दिन महीना है, तो उसके शूरा के फ़ौरन बाद अपनी मरकज़ी आमला का इजलास लाहौर में बुलाया है। उसके अंदर फिर जो फैसला हो गया तो इंशाल्लाह बकाया हम उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे मैदान में। ये मुनासिब नहीं है। आउटसोर्स उसकी की जाती है कि जो ना चलने वाली ट्रेन हो, जो ना इनसे चल रही हो। मतलब ये खुद इन्होंने जाहिर कर दिया कि जनाब हम ट्रेनें नहीं चला सकते, एक ठेकेदार ट्रेन चला सकता है और यहाँ इतने से बड़े अफसर हैं, इनसे ट्रेनें नहीं चल रही। तो इस फैसले की हम मजम्मत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। शेख मोहम्मद अनवर ने वाज़ेह किया जी हम इस फैसले के ख़िलाफ़ होंगे और डट के इसके ख़िलाफ़ मजम्मत भी कहते हैं हम करेंगे। और मुहर्रम के बाद लाहौर शहर में 5वां मुहर्रम उल हराम और शहर भर की मजालिस और जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। कहीं आजी पंजाब तो कहीं CCP लाहौर समेत DIG ऑपरेशन, SP सिटी ऑपरेशन और शहर के मजालिस का दौरा कर रहे हैं। लाहौर शहर में 5वां मुहर्रम उल हराम और शहर भर की मजालिस और जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। कहीं आजी पंजाब तो कहीं CCP और लाहौर समेत DIG ऑपरेशन, SP सिटी ऑपरेशन अंदरूनी शहर के मजालिस का दौरा करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। आपको बताएं कि लाहौर शहर में 5वां मुहर्रम उल हराम और शहर भर की मजालिस जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कहीं आजी पंजाब तो कहीं CCP लाहौर समेत DIG ऑपरेशन, SSP सिटी ऑपरेशन और अंदरूनी शहर के मजालिस का
दौरा करने में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखें, जिस तरह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से सूबा पंजाब के तमाम आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ और सीसीपीओ समेत डीआईजी ऑपरेशन को हदायत जारी की गई है कि जिस तरह से 5 मुहर्रम हराम है और बाकायदा तौर पर अंदरून शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो बड़े छोटे बड़े जुलूस वहां से निकलते हैं और बाकायदा तौर पर वहां पर एक बड़ा रश होता है। तमाम रास्ते जो है वो बंद किए गए हैं अंदरून शहर के लिए जाने के लिए, और गलियों में जो है वो खारदार तारे भी लगा दी गई हैं। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मुहर्रम के दिन गुजरते जा रहे हैं तो पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो सख्त होती चली जा रही है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में मीनार पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो कंटेनर लगा दिए जाएंगे, भाटी चौक में भी कंटेनर लगा दिए जाएंगे, तो इसी तरह से खारदार तारे भी लगा दी जाएंगी। और वाक थ्रू गेट का तो सिलसिला शुरू कर दिया गया है। भाटी गेट, लोहारी गेट, यकी गेट, मस्ती गेट, ये वो इलाके हैं जहां पर बड़ा जो है वो प्रोसेशन बरामद होते हैं और बाकायदा मजालिस भी होती है, और तकरीबन 500 से जायद जो है वो छोटे बड़े जुलूस और मजालिस होती है पूरे लाहौर में। तो डीआईजी ऑपरेशन खुद जो है वो इसकी निगरानी करते हैं। जिस तरह से हंजरवाल के इलाका में एक बड़ा जुलूस निकलता है और इसी तरह से भाटी गेट से रंग महल से लोहारी गेट होता हुआ जो है वो करबला गामेशा पहुंचता है। तो एसपी सिटी की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए हैं। एसपी सिटी सुबह जो है वो ड्यूटी चेक करने के लिए खुद आउट होते हैं और तमाम जो है वो अंदरून शहर में ड्यूटी को चेक किया जाता है। बाकायदा पुलिस मुलाजमीन को ब्रीफिंग भी दी जाती है। जहां पर ऊंची इमारतें हैं, जिस तरह से होटल सराय हैं, वहां पर भी पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, स्नैपर्स को तैनात किया गया है और बड़ा वाज़ेह कहा गया है कि मुहर्रम हराम के दिनों में कोई भी जो है वो ऐसा किराएदार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा जिसका इंदराज थाना में मौजूद नहीं होगा। तो इसी तरह से जो है मजालिस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में नजर आ रहे हैं और डीआईजी ऑपरेशन खुद भी वहां पर पहुंचते हैं। जिस तरह से अभी कुछ ही देर पहले बादशाही मस्जिद में भी सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन एसपी सिटी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने नमाजियों से भी गुफ्तगू की थी और तमाम चीजें जो है वो उनको वाजिया की गई थी। इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा टफ इंतजाम देखने में नजर आ रहे हैं और डीआईजी ऑपरेशन का यही कहना है कि जहां भी ड्यूटी लगेगी वहां पर पुलिस एहलकार मौजूद होंगे। रात गए 2 पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी से जो है वो गफलत बरतने पर घर चले गए थे, लेकिन उनको वायरलेस पर डिसमिस कर दिया गया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और वाजे कहा गया है जहां भी प्रिंटिंग प्रोग्राम के मुताबिक ड्यूटी लगाई जाएगी, अगर वहां से पुलिस एहलकार कहीं स्लिप हुआ या चला गया तो उसको जो है वो सारी जिंदगी के लिए डिसमिस कर दिया जाएगा, दोबारा उसको बहाल भी नहीं किया जाएगा। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहर के शाहराहें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मजीद सूरत हाल जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से, जो कि इस वक्त कायद नून लीग नवाज शरीफ के हल्के N130 में मौजूद है। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। सवेरे से जो है बारिश का सिलसिला जारी सारी है। 6:44 से जो है शहर लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये बारिशी सिलसिला जो है इसका आगाज़ हुआ था, जबकि हम देख रहे हैं सुबह सवेरे से होने वाली बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं, अगर खासकर नशेबी इलाकों के वाले से बात की जाए तो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी खड़ा हो गया और कई मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो अभी यहाँ से गाड़ी गुजर रही है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो 8 से 9 इंच तक पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा हो चुका है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह से पानी जो है अभी भी खड़ा हुआ है। अगर बारिश के वाले से बात कर ली जाए तो जेल रोड पर 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की, जबकि लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई 242 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। ताजपुरा में मिस्टर टाउन में 129 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। हेड ऑफिस बादशाह गुलबर्ग में 103 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी में 133 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मुगलपुरा एसडीओ में 132 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 125 मिलीमीटर करतवा चौक पर रिकॉर्ड की गई और सबसे कम बारिश जो है 65 मिलीमीटर जोहर टाउन एसडीओ में रिकॉर्ड की गई है और जेल रोड पर भी इसी तरह सबसे कम 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये मानसून के बारिश का सिलसिला जो है ये कई मज़ीद दिनों तक जो है वो जारी सारी रहेगा, जबकि आपको बताता चले इस बारिश के बाद जो है इंतज़ामिया की और वासा की पोल खोल के रखती है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और वहाँ पर कई मिलीमीटर बारिश होने के बाद जो है
8 से 10 इंच और कहीं पर 1.5 से 2 फुट तक पानी जो है वो जमा हुआ है। मानसून बारिशों के स्पेल ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को पानी में डुबो दिया। एक तरफ बारिश के होते हुए शहरों के चेहरे गर्मी और हब से टूटने से खिल उठे, तो दूसरी जानिब बारिश के पानी ने तबाही मचा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मोगल से, जो इस वक्त बागबानपुरा के इलाके सुल्तान महमूद रोड पर मौजूद हैं। जी उस्मान, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागबानपुरा का इलाका सुल्तान महमूद रोड, जहाँ पर जो बारिश की वजह से पानी का जो है वो निज़ाम बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। लेकिन दूसरी जानब मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर वापटा की जो वो टीमें हैं वो पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। लाहौर के अंदर मुख्तलिफ शहरों में यके बाद दीगरे जो है वो बारिश मूसलाधार जारी है, जिसकी वजह से जो पानी है मुख्तलिफ एरिया में यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शहरी जो बुरी तरह से इस पानी की वजह से मुतासिर हैं, क्योंकि यहाँ पर आना जाना और दूसरी तरफ जो वापटा का निज़ाम है वो भी मुतासिर है। किसी भी टाइम यहाँ पर करंट का कोई भी साने रूनमा हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। अच्छा बताइएगा कि जब बारिश होती है तो ये कितनी देर बाद ये पानी यहाँ से निकलता है और कितना ये पुराना इशू है? ये हम बचपन से देख रहे हैं, ये पानी कम से कम 7-8 घंटे लग जाते हैं पानी कम होने में। बाइक पे इधर बाइक निकलो बाइक बंद हो जाती है, गाड़ी पे कोई गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। इधर बहुत हमारे बच्चों को कहीं इधर करंट वगैरह भी लगा है, गाय भी 1-2 मरतबा इधर करंट के साथ मरी हैं। ठीक है, बहुत इशू है, हमने बहुत मरतबा कंप्लेन की है पर कोई 7-8 घंटे लगने के बाद यहाँ से पानी जो है वो अखराज किया जाता है और करंट लगने की वजह से मुख्तलिफ जानवर भी यहाँ पर जो है ना वो उनकी डेथ हुई है शहरियों का। ये हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा क्या कहेंगे, आला हुकाम से क्या अपील करते हैं? बस यही है कि अभी टीमें पहले तो नहीं आती थी, अभी देखा है ये टीमें लगी हुई हैं वासा की, तो उम्मीद तो यही है कि कुछ बेहतर करेंगे। बाकी देखें, हमारी तो यही अपील है कि जो भी है ना जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि बारिश होती है, बच्चे बाहर खेलते हैं गलियों में मोहल्लों में, ये जैसे तारे हैं करंट वगैरह होता है, इसमें फिर मुश्किल होती है। जानवर भी अक्सर 1-2 बार हुआ है ऐसा कि जानवर भी जो है ना इधर मर गए हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो बारिश के होते ही जो शहरी थे जो गर्मी और हबस की वजह से परेशान थे वो उनके चेहरे तो खिलखिलाहट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए बारिश के पानी की, तो बारिश का पानी जो है वो 3-3 फुट यहाँ पर रोड पर खड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं और यहाँ पर करंट की भी जो है ना वो सूरत हाल सुनने को मिली है। रावलपिंडी में फूड अथॉरिटी की अलील-सुब कार्रवाइयां, 1500 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मंदरा टोल प्लाजा, ठलियां और मोटरवे इंटरचेंज पर नाके लगाकर 2,22,000 लीटर दूध को चेक किया। टीम ने 30 दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया और 9 दूध बरदार गाड़ियों को 1,60,000 रुपए के जुर्माने आयद किए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।